इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर डीसीजीआई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी, आप वो सुनिए। ट्रांसफर फ्रॉम AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs Serum was granted permission to conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on ViroCell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated phase 1/phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggest that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of
Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. तो आप यहाँ पर सुन रहे थे डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर की गई है। इंतजार था यहाँ पर सभी को कि कोरोना वैक्सीन को यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जो इसको लेकर तमाम यहाँ पर बातचीत की गई और इसको लेकर यहाँ पर बयान दिया है। इसी के साथ यहाँ पर वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बहुत बड़ी खबर, राहत भरी खबर यहाँ पर कह सकते हैं। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है डीसीजीआई ने। ये बड़ी राहत की खबर, क्योंकि इंतजार, बेसब्री से इंतजार था कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन कब तक बाजार में आएगी, और यहाँ पर इस बीच यहाँ पर मंजूरी मिल गई है, जिसकी यहाँ पर लगातार उम्मीद की जा रही थी। 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी डीसीजीआई ने दी है। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसके साथ कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। तमाम डाटाओं को यहाँ पर जो डाटा है उसको जुटाया गया, वो हासिल किए गए। उसके बाद यहाँ पर बारीकी जो थी उस पर नजर बाकायदा रखी जा रही थी और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई ने ये बड़ा ऐलान कर दिया और ये बात यहाँ पर घोषणा कर दी, 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई, जो कि वाकई में राहत भरी खबर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर करोड़ों लोग इस महामारी से ग्रसित हो चुके हैं अब तक पूरी दुनिया में, और यहाँ पर लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच यहाँ पर इंतजार था कोरोना वैक्सीन का, और साथ ही साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि लगातार जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, दिन रात लगातार जुटे हुए थे। वैक्सीन यहाँ पर बनाई जा रही थी और अब इस बीच यहाँ पर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है डीसीजीआई ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई थी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब कह सकते हैं कि अगले हफ्ते से यहां पर यह प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि यहां पर ड्राई रन कल शुरू हुआ था, इसके साथ यहां पर पूरी रिहर्सल हुई कि किस तरह से यहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, उसका टीका जो अभियान है वो किस तरह से शुरू होगा। अब इसकी यहां पर जल्द से जल्द, हालांकि सरकार ने पहले से तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो इस बीच यहां पर कह सकते हैं सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी डीसीजीआई ने अब दी है। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी। तो ये तमाम जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर बड़ा ऐलान किया। 2 वैक्सीन जिसे इस्तेमाल की मंजूरी दी है एक्सपर्ट कमेटी ने। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी, जी हां, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई। भारत की यह वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, यहां पर वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि, भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर, डीसीजीआई ने 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। बिल्कुल, देखिए, जिस मंजूरी का इंतजार हो रहा था उस मंजूरी के लिए आखिरकार वो परमिशन मिल गई है, और जिस तरह से सीरम और भारत बायोटेक को परमिशन मिली है उसके बाद से इतनी बात साफ है कि इन दोनों की दवाइयां अब आम आदमी को लग सकेंगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों जो वैक्सीन है वो आम आदमी को लग पाएंगी। काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था इस बात का कि आखिरकार कैसे जो है कब तक इनको परमिशन मिलेगी, कब तक भारत में टीकाकरण शुरू होगा, और जिस तरह की स्थितियां थी उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है उसने भी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन की थी। 2 दिन लगातार बैठक चली और 2 दिन लगातार बैठक चलने के बाद आखिरकार अब अनुमति मिल गई है, और आज जो डीसीजीआई है उन्होंने बताया कि दोनों कंपनियों को परमिशन मिली है और मेसर्स कैडिला को
फेज 3 के ट्रायल के लिए भी परमिशन मिल गई है। जी, और ललित जी, कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि यहाँ पर कल ड्राई रन भी हुआ, इसी के साथ यहाँ पर टीकाकरण अभियान अब कब से शुरू हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भारत सरकार की तैयारियां हैं, भारत सरकार की तैयारियां बड़े स्तर पर है और इतनी तैयारियां कर ली गई है, जो हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि भारत सरकार अगर चाहे तो 2 दिन के अंदर ही देश भर में जो है वो अपना वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सकती है। हालांकि वैक्सीन को पहुंचने में अपना एक समय लगेगा, क्योंकि वैक्सीन पहले जहां कंपनी की फैक्ट्री में जहां बनी है वहां से उसको अलग अलग सेंटर पर लाना, उसके बाद उसको सही टेम्परेचर पर मेंटेन करना। जिस तरह से उन्होंने बताया कि 2 to 8 डिग्री का इनका टेम्परेचर है दोनों वैक्सीन का, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों को मेंटेन करना भी बेहद जरूरी है, इसलिए उनको सेफली जगह से आखिरी स्पॉट तक पहुंचाना। देखिए, संभव इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि भारत में जिस तरह का टेरेन है उसमें हमको दिल्ली जैसे राज्य भी मिलते हैं जहां पर एक तरह से प्लेन इलाके हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनके कई सारे इलाके जो है वो बड़े ही एक तरह से ऊंचे इलाकों में है, पहाड़ों में स्थित है। तो अब ऐसे में कैसे वहां तक वैक्सीन पहुंचेगा, क्योंकि सरकार के एजेंडे में अभी तो फिलहाल जो 3 करोड़ लोग हैं, पहले 3 करोड़ लोगों का देने का लक्ष्य है। हालांकि सरकार ने पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को देना है, लेकिन पहले चरण में सरकार का कहना है कि 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर है और 2 करोड़ जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर है। तो इन 3 करोड़ के लिए अगर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें अब सरकार के सामने एजेंडा है कि सबसे पहले अपने हेल्थ केयर सेक्टर को सुरक्षित करना, क्योंकि हमने देखा था पूरे कोरोना काल के दौरान कई सारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस पूरे कोरोना संक्रमण के कारण। ललित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी राहत की बात है, जो कि डीसीजीआई ने यहाँ पर 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। अब इस बीच यहाँ पर टीकाकरण अभियान भी शुरू होगा और यहाँ पर बात हो रही है कोरोना वैक्सीन की, जिसकी मंजूरी अब डीसीजीआई ने दे दी है। इसी के साथ यहाँ पर तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं कि किस तरह से प्रक्रिया शुरू होगी और जो टीकाकरण अभियान है वो किस तरह से यहाँ पर शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी ललित नारायण कांडपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, यहां पर डीसीजीआई ने मंजूरी दी 2 कोरोना वैक्सीन को। इस बीच हम यह भी जानना चाहेंगे, जो एक्सपर्ट कमेटी है उस कमेटी ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ डाटा कलेक्ट किए, जिसके बाद इस नतीजे पर पहुंची ये जो वैक्सीन है वो कारगर साबित हो सकती है। उसके बाद इन दोनों ही जो वैक्सीन है उसको मंजूरी दी है। देखिए, दोनों ने ये बताया, आज जो डीसीजीआई है उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से दोनों वैक्सीन को लेकर काफी डिटेल स्टडी की गई और सारी चीजों की जांच की गई। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो बनाई गई थी उसने तकरीबन कई मीटिंग्स करके इन दोनों वैक्सीन की एफिकेसी को चेक किया और कंपनियों की ओर से जिस तरह से दावा किया गया था उस दावे की पूरी तरह से परीक्षण करके हमने देखा था कि 2 दिन जो है, 2 से भी ज्यादा दिन जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी। पहले दिन हमने देखा कि सीरम को लेकर रिकमेंडेशन की गई थी और दूसरे दिन हमने देखा कि जिस तरह की स्थिति थी उसमें भारत बायोटेक यानी कल जो है भारत बायोटेक को लेकर रिकमेंडेशन की गई। पहले दिन इन दोनों कंपनियों से जब पहली बैठक हुई थी तो उन दोनों कंपनियों से और डॉक्यूमेंट की भी जानकारी ली गई थी। तो यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सारी चीजों पर इन दवाओं को परखा है और जिस तरह के दावे जो ये लोग कर रहे थे उस तरह के दावे को लेकर अब जो है इनकी सारी जांच की गई और उसके बाद ही इनका अप्रूवल हुआ है। और उसके बाद जो है डीसीजीआई ने आज इस पूरे मामले में बताया कि इसका अप्रूवल कर दिया गया है और दोनों वैक्सीन को जो है सिफारिश कर दी गई है। साथ ही मेसर्स कैडिला को जो है वो तीसरे फेज 3 के लिए भी अनुमति दे दी गई है। जी। और ललित जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस पर भी प्रकाश डालिए कि जो वैक्सीन है, क्या ये कोरोना जो वैक्सीन है ये यहाँ पर फ्री में लगाई जाएगी या इसकी कीमत निर्धारित सरकार अभी करेगी? देखिए, जो कल की स्थिति थी, कल अगर ये सवाल पैदा हुआ था, कल देश भर में ड्राई रन था और ड्राई रन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि जब उनके एक स्टेटमेंट के बाद ये
ये चीज सामने आ गई थी कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन फ्री दिया जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले चरण में जो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाना है, उसमें से 3 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन पहले फ्री दिया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर हैं और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर हैं। तो इस तरह की चीजें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी थी और ये उन्होंने अपने ट्वीट करके जानकारी दी थी। जी। और ललित जी, इस बीच यहाँ पर यह भी जानकारी चाहिए, जो कोरोना का नया रूप यानी कि स्ट्रेन आया सामने, ब्रिटेन से नया रूप सामने आया कोरोना का, क्या ये कोवैक्सीन और जो 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली, क्या उस महामारी को रोकने में भी कारगर होगी? क्या स्ट्रेन को खत्म कर पाएगी ये वैक्सीन? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमने देखा था कि इस पूरे मामले में पहले कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ये जो वैक्सीन है, जो दोनों वैक्सीन आ रही हैं, ये जो नया स्ट्रेन आया है ब्रिटेन से, उस पर भी पूरी तरह से कारगर है। उन्होंने साफ कर दिया था, जो कि भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया था कि ये नए स्ट्रेन पर भी कारगर रहेगी। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की शंका की जो है वो एक तरह से स्थिति रहेगी, और अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। 2 वैक्सीन का रास्ता देश भर में आम लोगों को लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। DCGI ने आज अनुमति दे दी है। ये उस स्ट्रेन पर भी कारगर है जो ब्रिटेन से मौजूदा समय में आया है, जिसको लेकर कई तरह के एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। अब सबको इंतजार इस बात का है कि कब से जो है वैक्सीनेशन शुरू होता है। जी ललित जी, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर DCGI ने मंजूरी दी कोवैक्सीन के लिए, और इस बीच यहाँ पर राहत वाली बात, यहाँ पर राहत यह है कि जो वैक्सीन जिसका इंतजार हम सभी बेसब्री से कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं, और 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी यहां पर DCGI ने दे दी। जिसका अप्रूवल का इंतजार किया जा रहा था, वो अप्रूवल अब मिल चुका है, यानी कि 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन, जो 2 वैक्सीन है, इनको मंजूरी मिली है। और सबसे पहले बात यहां पर आपको बता दें कि 3 करोड़ लोगों को, जिसमें हेल्थ कर्मी और फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको ये वैक्सीन यहां पर दी जाएगी। और ललित जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी, हालांकि सबसे पहले यहां पर जरूरत भारत को भी है, भारत को भी यहां पर मंजूरी दी है, आप तक आवाज पहुंच रही, तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि भारत सरकार जिस तरह से लगातार कह रही थी कि हम अन्य देशों की मदद भी करेंगे, तो क्या उसके लिए भारत तैयार है अन्य देशों की मदद करने के लिए भी? अब देखिए, इस बारे में सरकार अपनी स्थिति को कह चुकी है कि वो अगर जिस तरह से उनका जो टारगेट रखा गया है, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था, साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। वेरी सेफ, डोंट वरी। जी ललित जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, एक बार फिर से सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले चरण में कहा था कि पहले चरण में हमारा जो लक्ष्य है वो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है, और स्वास्थ्य सचिव ने उस दिन कहा था कि उनका लक्ष्य है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने से अगर ये चेन टूट जाती है, तो फिर उसके बाद उनको नहीं लगता है कि पूरे देश को ये वैक्सीन देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कई मौकों पर ये सरकार कह चुकी है कि वैक्सीन सबके लिए है और सभी लोगों को दिया जाएगा। तो अब ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है, और अगर जरूरत, साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है। देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा, तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है? ऑफ कोर्स 110%। साइड इफेक्ट नहीं है? 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। वहां पर आप सुन रहे थे एक्सपर्ट कमेटी के जो अधिकारी हैं, आप उनके बयान सुन रहे थे। उन्होंने भी कहा कि डाटा जुटाया गया और इसी के साथ यहाँ पर तमाम पहलुओं को देखा गया, उसके बाद परखा गया, उसके बाद इन वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो वाकई में कह सकते हैं
एक बहुत बड़ी राहत की खबर जिसका इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। अब बारी है टीकाकरण अभियान की और जल्द ही जल्द ये सरकार यहाँ पर इस वैक्सीन के यहाँ पर टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। सहयोगी ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।